محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اسی حوالے سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کی ابتدا ہوئی، اس مہینے کے حوالے سے اور یعنی ماہ ربیع الاول، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، کچھ باتیں بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد اس حوالے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسا ہونا چاہیے اور اس کا اس مہینے سے مناسبت کیا ہے، یہ باتیں ذکر کروں گا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے، کس جذبے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا چاہیے۔ اللہ نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ محترم بھائیوں، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اگر دوسرے الفاظ میں میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں۔ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے لوگو میں تمہارے لیے والد جیسا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، آپ سے اور آپ اپنی امتیوں سے قیامت تک آنے والے تمام لوگ جو ابھی اس دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقیقی ماں باپ جو ہیں ان سے زیادہ فکر کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے حوالے سے، ہماری آخرت کے حوالے سے، دنیاوی اعتبار سے اور دنیا سے جانے کے بعد ہمارے آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ان ساری باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہا کرتی تھی، آپ تڑپتے تھے، آپ سوچتے تھے، فکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میں اپنے ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی اس دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، آپ نے آرزو ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم سب کو دیکھنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی کے اندر جس کو جیتے جی دیکھا نہیں ہے تو آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے اپنے امت سے کتنی محبت کرتے تھے اور کتنی فکر کرتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا دی، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا دی، اور اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی بھی دی کہ یہ دعا جو آپ کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اس دعا کو مانگیں گے تو یہ دعا قبول ہو کر کے رہے گی۔
सारे नबियों ने उस दुआ का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के अंदर कर डाला। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दुआ दी गई जो हर नबी को दी गई थी, एक इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वइन तबातु दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, कि तमाम नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दुआ दी, हर नबी ने उस दुआ का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के अंदर कर दिया, लेकिन जब मुझे वो दुआ मिली तो मैं अपनी उस दुआ को छिपा करके रखा हूं और क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए इस दुआ के जरिए शिफाअत करूंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश हो जाइए कि आपकी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बिला हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होने वाले हैं, न उनसे कोई हिसाब होगा, न किताब होगा, न सवाल होगा, न जवाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि जाओ तुम लोग जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम्हारे इस्तकबाल के लिए फरिश्ते खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खुशखबरी मिली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुश नहीं हुए बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठा दिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने ये हमें खुशखबरी सुनाई है कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बिला हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। शुक्र है, लेकिन मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरज़ू है कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इस तादाद को तू और बढ़ा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की कितनी फिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तादाद को तो और बढ़ा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना, आरज़ू और दुआ के बाद दूसरी खुशखबरी आई और दूसरी खुशखबरी ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आपको जो पहली खुशखबरी सुनाई गई थी कि आपकी उम्मत में 70,000 अफराद बिला हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, अब हर 1000 के साथ मजीद 70,000 अफराद बिला हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में आप अपनी उम्मत की इतनी फिक्र क्या करते थे। और आप देखिए, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मेरी इत्तिबा करे, जो मेरी पैरवी करे वो तो मुझ में से है, वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और जो मेरी नाफरमानी कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बख्शने वाला है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मत के ताल्लुक से कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तू इन्हें अज़ाब देता है तो ये तेरे बंदे हैं, व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू इन्हें माफ कर देता है तो तू बड़ा बख्शने वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी और आपने ये देखा कि ये दोनों नबी अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, अपने उम्मत के बारे में सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फिक्र लायक हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक भीग गई, दारो कतार रोने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की वजह से जब आप ज्यादा रोने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि कहा जाओ देखो कि ये मेरे नबी के पास जाओ और उनसे पूछो कि ये मेरा नबी क्यों रो रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर रोने की क्या वजह है, ये आंसू किस लिए और किसके हक में गिर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ी और मैंने देखा कि ये दोनों नबी अपनी उम्मत की फिक्र करते हुए अपनी उम्मत के लिए फिक्र कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो मुझे मेरी उम्मत की फिक्र लायक हो गई कि कल हश्र के मैदान में मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। उम्मती उम्मती कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे।
जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाते हैं, वो सारी बातें बताते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जबकि बताने से पहले सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन से सामने बयान किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि ऐ जिब्रील, जाओ मेरे नबी के पास और उन्हें खुशखबरी सुना दो कि इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिक, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी उम्मत के हक में कयामत के दिन वो फैसला करने वाले हैं जिसे सुनकर आप राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे, अपने उम्मत के ताल्लुक से कितना फिक्रमंद रहा करते थे, और आखिरत के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ की जन्नत कैसे मिले, जहन्नम से कैसे बचा जाए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के ताल्लुक से बार बार फिक्र होती थी। अब आप सोचिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे कितनी मोहब्बत करते थे। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम चाहें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो वो शख्सियत है कि इंसान तो फिर भी, इंसान का दिल तो फिर भी गोश्त और खून का बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो वो शख्सियत है कि आपसे तो कायनात के जमादात ने मोहब्बत किया, आपसे कायनात के नबातात ने मोहब्बत किया, कायनात के शजर, कायनात के दरख्त, कायनात के पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। आप वो मशहूर वाकया जानते होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नी लाअरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया, कि नबी बनाए जाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर एक ऐसी गली से गुजरते थे तो मक्का का एक पत्थर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करता था, उसके सलाम की आवाज आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम को सुनते थे, जवाब देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से यह बात कही, लेकिन सहाबा कराम के यहाँ आधार परस्ती का मिजाज नहीं था। सहाबा कराम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बतलाइए कि वो कौन सा पत्थर था। आज के दौर के लोगों को पता चल जाए तो आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पत्थर सलाम किया करता था, वलियाजुबिल्लाह पूजा भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन सहाबा कराम के आधार परस्ती का मिजाज नहीं था, उन्होंने सिर्फ सुन लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम उन्हें मालूम हो गया और खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये पत्थर करते थे। और वो मशहूर वाकया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर बनाए जाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का एक तना था जिस पर टेक लगा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। लेकिन जब पहली मर्तबा मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर बनाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा देना शुरू किए, मस्जिद नबवी के अंदर रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। सहाबे कराम जो मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, सारे लोगों ने उस रोने की आवाज को सुना। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब अपनी मां से जुदा हो जाता है तो बिलक बिलक कर रोता है, इसी तरह से एक रोने की आवाज आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर से उतरे और खजूर के तने को आपने गले लगा लिया। ये खजूर का तना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर हफ्ते उसको टेक लगा करके खुतबा देते थे, लेकिन जब मिंबर बन गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़ करके मिंबर पर खड़े हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिराक में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में वो खजूर का तना रोने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और फौरन उसे गले लगा लिए, वो खामोश हो गया। रिवायत के अंदर आता है कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब अपनी मां से जुदा होता है तो किस कदर बिलक कर रोता है, लेकिन जब वो अपनी मां से गले लगा लेता है तो जिस तरह से सिसक सिसक की आवाज आती है, वही हालत उस खजूर के तने की थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिराक और जुदाई में कि आप उसे छोड़ करके मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिराक और जुदाई में रो रहा था और उसके रोने की आवाज को सहाबा ने सुना, मस्जिद नबवी में बैठे हुए सारे लोगों ने सुना। कहना यह है, इस मुख्तसर सी तमहीद जो मैंने आपके सामने पेश किया है, कहना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात के जमादात, कायनात के नबातात, कायनात के शजर, कायनात के दरख्त, कायनात के पत्थर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, तो इंसान क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। लेकिन मोहब्बत का तरीका क्या है?
मोहब्बत का इजहार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाएगा और किस तरह से मोहब्बत किया जाएगा, और इसकी वजाहत मैं अभी करूंगा आपके सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मोहब्बत करने के लिए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कि हम ही सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, क्या उसके लिए सिर्फ ये महीना है जो अभी चल रहा है? जिस महीने की इब्तिदा अभी हुई है, रबीउल अव्वल का महीना अभी शुरू हुआ है, अब इस महीने के आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करना है, इस सिलसिले में सिर्फ क्या ये यही महीना है, रबीउल अव्वल का ही महीना है कि इसमें सिर्फ इजहार किया जाए? आज देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, ये महीना आते ही कुछ ऐसी चीजें की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर मुशायरे मुनाकिद होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए मजलिसें मुनाकिद होती है, महफिलें मुनाकिद होती है, और इसी तरीके से अलग अलग किस्म के कपड़े पहने जाते हैं, और इसी तरीके से क्या नाम है, मज़ामीन लिखे जाते हैं। बहुत सारी चीजें खास तौर से इस महीने के अंदर की जाती है। जैसे ही चांद निकलता है, और उसका मतलब ये होता है कि वो लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। तो क्या यही हकीकी मानों में यही मोहब्बत है और यही असल मोहब्बत है? शरीयत में यही मोहब्बत मतलूब है? मोहब्बत दो तरह की, मोहब्बत के दो पहलू हैं। जब दोनों पहलू एक साथ जमा हो जाएंगे तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हकीकी मफ़हूम अदा होगा। एक तो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से किया जाए, जैसा कि किया जाता है, उसका जाहिर भी, उसको इसका इजहार भी किया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत। अब होता क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से तो मोहब्बत हर कोई करता है, लेकिन इसी को लोगों ने असल समझ लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा कैसा पहनते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा कैसे लगाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा कैसा बांधते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजा कैसे पहनते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे। ये एक पहलू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात से ताल्लुक हो गया, और दूसरा पहलू यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और शख्सियत के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से मोहब्बत किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तौहीद से मोहब्बत किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से मोहब्बत किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब से मोहब्बत किया जाए। जब ये दोनों पहलू एक साथ जमा हो जाएंगे तब हकीकी मोहब्बत का मतलब पता चलेगा। अब अगर कोई ये कहे कि इसी महीने के अंदर, इसी रबीउल अव्वल के महीने के अंदर जुलूसे निकाले, मजलिसें मुनाकिद करे, महफिलें लगाए, और इसी तरीके से दावा करे कि हम सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उसका इजहार करे, और दूसरे पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो दूसरा पहलू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव शरीयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा पैगाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब, इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक पहलू पर बात की जाती है, और खास तौर से इस महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जाता है। मैं कहता हूं और दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ मोहब्बत का इजहार खास तौर से रबीउल अव्वल के महीने में करना फजूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा मोहब्बत करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए कोई दिन, कोई महीना, कोई हफ्ता और कोई साल खास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि मैंने शुरू में तमहीदी गुफ्तगू में बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते थे, तो हमेशा हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही मोहब्बत करना है। और मोहब्बत के वो सारे दावे झूठे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ जात से मोहब्बत किया जाए। अगर कोई शख्स सिर्फ जात से मोहब्बत करता है, आप पर नाज़िल करदा शरीयत से, आपकी सुन्नत से, आपकी लाए हुए तौहीद से, आपके लाए हुए पैगाम के, आपके मिशन से, आपकी नाज़िल करदा किताब से मोहब्बत नहीं करता है, तो मोहब्बत के सारे दावे में कोई झूठा है। कैसे झूठा है, मैं आपको दलील देता हूं। अबू लहब को कौन नहीं जानता? अबू लहब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कितनी मोहब्बत किया।
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है और खुशखबरी देने वाली लौंडी सोएबा जब इसके पास आती, अबू लहब के पास आती है और कहती है आका खुश हो जाइए, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। अबू लहब जब इस खुशखबरी को सुनता है तो वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अबू लहब ने इतना जश्न मनाया, इतना खुश हुआ कि वो खुशखबरी देने वाली लौंडी को कहता है कि सोएबा आज तुमने हमें ऐसी खुशखबरी दी है कि इससे पहले ऐसी खुशखबरी किसी ने नहीं दी है, जाओ इस खुशखबरी की नतीजे में मैं तुम्हें आजाद करता हूं, आज से तुम आजाद हो गई। वो अपनी लौंडी सोएबा को उसने ये कहकर के आजाद कर दिया कि तुमने आज मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, ऐसी खुशखबरी किसी ने नहीं दी है। यानी गोया कि अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर कितना जश्न मनाया, इतना खुश हुआ कि वो अपनी लौंडी सोएबा को आजाद कर दिया। लेकिन आखिर क्या वजह थी? आखिर क्या वजह थी कि अबू लहब की मजम्मत में अल्लाह ने पूरी एक सूरत नाजिल कर दिया। कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद कि अल्लाह ने इस सूरत के अंदर ये पैगाम दिया। कहा अबू लहब अपने अहलो अयाल और अपनी बीवी समेत हिलाको बर्बाद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अबू लहब ने जश्न मनाया, खुशियां मनाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता था कि वो अपनी लोंडी को आजाद कर दिया। लेकिन कुरान में अल्लाह ने उसकी मजम्मत में आयतें क्यों उतारी कि अबू लहब हिलाक हो गया अपने अहलो याल समेत? वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी कि उसने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत किया। आपकी लाई हुई शरीयत, आपके लाए हुए पैगाम, आपके उसमें से, आप पर नाजिल करदा किताब से उसने मोहब्बत नहीं किया, सिर्फ जात से मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे कबूल नहीं किया। अबू तालिब को कौन नहीं जानता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब जब तक जिंदा थे मक्का वालों के अंदर इतनी जुरात और इतनी हिम्मत नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तदराजी कर सकें, आपसे आकर के लड़ाई झगड़ा कर सके। मक्का वालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सिक्योरिटी की हैसियत से थे। जब तक जिंदा थे जितनी भी रिवायतें दस्तदराजी के आती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने हमला किया, आपके पर आप दावत तौहीद आप पेश करते थे तो उन लोगों ने रोकने की कोशिश की, ये सारी बातें अबू तालिब के वफात के बाद की है। जब तक अबू तालिब जिंदा थे मक्का वालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कह सके, अबू तालिब के डर से कि अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा जब बहुत ज्यादा वो लोग परेशान हो गए मक्का वाले और देख रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है, लोग इस्लाम की तरफ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो लोग भागते हुए अबू तालिब के पास आए और अबू तालिब से मक्का वालों ने कहा कि ऐ अबू तालिब तुम अपने भतीजे को समझाओ, तुम्हारे इस भतीजे की दावत की वजह से मक्का के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया है, वालिदैन औलाद में इख्तिलाफ है, मियां बीवी में इख्तिलाफ हो रहा है, लोग अलग अलग तरह से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इख्तिलाफ हो रहा है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिकायतें। सारे लोग मिलकर के अबू तालिब के पास गए। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ऐ भतीजे क्यों तुम लोगों के गजब का निशाना बन रहे हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा? मक्का वाले सब के सब तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने इस दावत से बाज आ जाओ, छोड़ दो, क्यों लोगों से दुश्मनियां कर रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से अबू तालिब की बात सुनते रहे। अबू तालिब ने जब नसीहत उन्हें कर दी, समझा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि देखो ऐ मेरे चचाजान, ये मक्का वाले दाएं हाथ में मेरे सूरज ला करके रख दें और बाएं हाथ में चांद ला करके रख दें और ये डिमांड करे कि मैं अपने इस दावत से बाज आ जाऊं तो मैं नहीं बाज आ सकता। ये जुमला कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और वहां से जाने लगे। तो अबू तालिब ने बुलाया, कहा भतीजे इधर आओ।
भतीजे इधर आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू देख करके अबू तालिब को बर्दाश्त नहीं हुआ और अबू तालिब ने कहा कि भतीजे जाओ, मक्का के अंदर तुमको जो करना है करो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। इतनी मोहब्बत अबू तालिब से ज्यादा इस दुनिया के अंदर कौन कर सकता है। अबू तालिब इतनी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, लेकिन आखिर क्या वजह थी? वजह क्या थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि अबू तालिब जहन्नम में है। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद अबू तालिब जहन्नम में है और अबू तालिब को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और जहन्नम का सबसे हल्का जो अजाब होगा वो दिया जाएगा, यानी आग की जूती पहनाई जाएगी जिससे उनका दिमाग खोल रहा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अबू तालिब ने भी किया, अबू लहब ने किया, लेकिन वो मोहब्बत काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मोहब्बत के एक पहलू को उन्होंने इख्तियार किया था, सिर्फ मोहब्बत के एक पहलू को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जो दूसरा पहलू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, आपके लाए हुए पैगाम, आपकी लाई हुई तौहीद से उन्होंने मोहब्बत नहीं किया तो मोहब्बत का कुछ फायदा हुआ। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अगर हम सिर्फ इस महीने के में करते हैं और उस महीने को खास कर लेते हैं, एक दिन को खास कर लेते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपके सामने दलील दिया। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो इजहार करता, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ने और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद कर दी है। आप उस जिम्मेदारी को पूरा करोगे तब ये वाज़े होगा, तब ये पता चलेगा कि आप ही सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। उसमें से एक बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर हमारे सामने आ जाए तो फौरन उसे हमें समेना वाताना कहना है। अगर सनद सही है, रिवायत सही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने बयान कर दी गई, हमको कहना है समेना वाताना, हमने किया और सुना और मान लिया। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। आज होता क्या है, आज के नौजवान बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस उनके सामने पेश की जाती है, कहते हैं हमारी अक्ल नहीं मानती है, मेरे अक्ल में ये बात नहीं आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर सही है, आपकी अक्ल अगर नहीं मान रही, आप अपने अक्ल का इलाज कराइए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही है, जैसे अज़ाब कब्र का इनकार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जादू का इनकार कर दिया। अब अगर आप जादू का इनकार कर रहे हो तो गोया की सही हदीस, सही बुखारी की कितने रिवायतों का आपने इनकार कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत का दावा आप करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर आ जाए फौरन आप उसे कबूल करना है, समेना वाताना कहना है। सहाबे किराम का जज्बे इताअत यही था। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने की मार्केट में निकले घूमने के लिए, आपको एक घोड़ा पसंद आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा नहीं था कुछ खरीदने के लिए, लेकिन वो घूमने के लिए आप गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मार्केट में कहा, ये घोड़ा किसका है, ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसका है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। एक देहाती आया जो मदीना के आसपास में कहीं रहता था, वो उसी का घोड़ा था। उसने कहा कि मेरा है, मैं बेच रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कितने में? उसने दाम बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं इसे खरीद रहा हूँ, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खरीदने के इरादे से मार्केट में नहीं आया था। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर पे और वहां पर मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ। उसने कहा, ठीक है। सौदा मुकम्मल हो गया, बात पूरी हो गई, सब कुछ तय तमाम हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब वो बद्दू घोड़ा लेकर के जाने लगा तो मदीना, उस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग थे और लोगों को पता नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घोड़े को खरीद लिया है। आवाजें लगाना शुरू कर दी, किसका घोड़ा है, बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा है, कितना अच्छा घोड़ा है, किसका है। एक आदमी कह रहा है मैं खरीदना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं खरीदना चाहता हूँ। बस वो खुशफहमी में मुब्तला हो गया कि अगर इस घोड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और से मैं बेचूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब उसकी नीयत बदल गई, और जब नीयत बदली तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि अगर आपको घोड़ा खरीदना है तो खरीद लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो मैंने तो तुमसे खरीदा है, बात पूरी हो गई, सौदा मुकम्मल हुआ, सिर्फ पैसा देना बाकी है। अब वो कह रहा है कि नहीं, तुमने मुझसे घोड़ा नहीं खरीदा है। जो एराबी और देहाती किस्म के लोग, खासतौर से अरब के देहाती, जिनके बारे में कुरान ने कहा है अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाक़न व अज़्ज़रु अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूली। ये देहाती किसी टाइप के लोग जो होते हैं, अगर ये काफिर होते हैं तो अपने कुफ्र में सख्त होते हैं, अगर ये मुनाफिक होते हैं तो इनका निफाक सख्त होता है, और अगर ये मुसलमान होते हैं तो तहजीब व अखलाक से आरी होते हैं।
अरक के बदबू की यह हालत थी, कुरान ने उसका जिक्र किया है। तो वो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रहा है। ये सारी बातें जब हो रही थी तो उसने क्या कहा कि अगर तुमने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो गवाह पेश करो। जब तक नहीं पेश करोगे तब तक मैं ये घोड़ा तुमको नहीं बेचूंगा। अब ये सारा माजरा एक सहाबी जिनका नाम था खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु दूर से देख रहे थे। जब गवाही की बारी आई तो भागते हुए आए और उस देहाती से कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ये घोड़ा खरीदा है। अब गवाही मिल गई। अब उस देहाती को मजबूर हो करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़ा बेचना पड़ा। जब वो बेच करके चला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुजैमा बिन साबित को बुलाया और कहा कि ऐ खुजैमा, जब मेरी इसकी लेन देन की बात चल रही थी तो तुम वहां मौजूद नहीं थे, कैसे तुमने गवाही दे दी? खुजैमा बिन साबित ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान से आने वाली वही के सिलसिले में मैं आपकी तस्दीक करता हूँ, घोड़ों के सिलसिले में आप झूठ बोलेंगे? मेरा ये ईमान है, मेरा ये अकीदा है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप उसके रसूल हैं, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस हैसियत से मैंने गवाही दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को जमा किया और सहाबे कराम को जमा करने के बाद कहा है, मेरे सहाबा सुनो, खुजैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज के बाद अगर किसी मामले में गवाही देते हैं तो इनकी एक गवाही से 2 गवाहियां मुकम्मल हो जाएंगी। ये शर्फ और ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ तबके सहाबा में खुजैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। दुश्शहादतैन सीरत की किताबों में उनका लक़ब मिल गया है। तो कहना यह है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा अगर करते हैं या उसका इजहार करते हैं और ये कहते हैं हम ही मोहब्बत रसूल हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें उसे समझना वाताना कहना है, उसे मान लेना है और उस पर अमल करना है, जैसा कि सहाबे कराम करते थे। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बहुत बड़े बड़े दावे खास तौर से इस महीने में होते हैं, जबकि न वो नमाज पढ़ते हैं, न रोजा रखते हैं, या इसी तरीके से फर्ज नमाज को भी छोड़ देते हैं मजलिस और महफिलों की वजह से, और उसके बाद कहते हैं कि हम ही मुहब्बे रसूल हैं। उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी है। अगर आप उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हो, आप मुहब्बे रसूल नहीं हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा अगर हम करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी गुजरी, ये चीजें हमें देखना है और उस पर अमल पैदा होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि आपने दुनिया की जिंदगी को हकीकी जिंदगी नहीं समझा। आप दुनियावी जिंदगी को मुसाफिरत की जिंदगी समझते थे, आरजी जिंदगी समझते थे, और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को कभी हकीकी नहीं समझा। और आज हमारा मामला क्या है, हम इस दुनिया की जिंदगी को हकीकी जिंदगी समझ बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने किसी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या कह रहे हो तुम? उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे मोहब्बत का दावा करने से पहले ये सोच लो कि अगर हकीकी मोहब्बत तुम हमसे करोगे तो फक्र व फाका तुम्हारे घर जरूर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब जाहिर सी बात है, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत का दावा अगर करता है और उस पर अमल पैरा भी होता है, बिजनेस आदमी कर रहा है, बिजनेस में अगर धोखेबाजी जो कर रहा है उसे छोड़ना पड़ेगा, सूद का कारोबार कर रहा है उसे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हकीकी मफ़हूम अदा होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, अब इसका ये हदीस का ये मतलब नहीं है कि आदमी कमाना छोड़ दे। इस्लाम कहता है कि दुनिया में तुम कमाओ, तरक्की करो, घर बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, बंगले बनाओ, पैसा जमा करो। इस्लाम मना नहीं करता है, आप सब कुछ करो, लेकिन इसे दिल में जगह मत दो। पैसा सिर्फ जेब में रखो और जेब ही तक रखो, उसे अपने दिल में ना आने दो। शरीयत इस्लामिया यही कहती है। तो अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी जिंदगी गुजारी है वैसी जिंदगी गुजारना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में लेटे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर निशान बन गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत उमर रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको देख रहा हूं कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे चहेता बंदा मेरा नबी, जिसके पास एक तकिया में सब नहीं है कि वो लेट करके तकिए पर सोए, और मैं अपने नबी के चेहरे पर चटाई के निशान को देखकर क्यों ना रो। और मैं देख रहा हूं इस दुनिया के अंदर जो लोग नाफरमानियां करते हैं, खासतौर से कैसर व किसरा का उन्होंने नाम लिया कि कैसर व किसरा के बादशाह जो अल्लाह की दिनों रात नाफरमानियां करते हैं, ऐसे इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और मेरा नबी जो अल्लाह का सबसे चहेता बंदा है उसके पास एक तकिया नहीं है कि वो तकिए पर सर रख दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा, उमर माली वली दुनिया, मेरा इस दुनिया से क्या लेना देना,
میرا इस दुनिया से क्या लेना देना, मैं तो दुनिया को एक मुसाफिरत की जिंदगी गुजार कर समझ रहा हूँ। हकीकी जिंदगी मैंने इसको कभी समझा ही नहीं। फिर तसल्ली दिया हजरत उमर को, तसल्ली देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है उमर अमा तरज़ा अन तकून लहुम दुनिया वलना फिल आखिरह, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि कैसरो किसरा के लिए दुनिया और दुनिया की लज्जतें हों और हमारे लिए आखिरत और आखिरत की नेमतें हों। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी जिंदगी गुजारी है वैसी जिंदगी हमें गुजारना है प्रैक्टिकली तौर पर, तब मोहब्बत का हकीकी मफहूम अदा होगा। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अगर हम दावेदार हैं, हम दावा करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जात के मोहब्बत के साथ साथ और शरीयत के मामले में शरीयत ने जैसा हुक्म दिया है उस तरह से मोहब्बत करने के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम का जज्बे तार क्या था कि वो दीन के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के सिलसिले में भी फॉलो करते थे। हजरत अनस कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने देखा कि खाने के बर्तन में कद्दू को ढूंढ ढूंढ करके खा रहे हैं तो मुझे कद्दू से मोहब्बत हो गई। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर भी फॉलो करना है और शरीयत के मामले में भी फॉलो करना है। सिर्फ ये नहीं करना है कि एक दिन या एक महीने में अच्छे कपड़े पहन लेना है और अमामा पहन लेना है, सुरमा लगा लेना है और इसी तरीके से वो सारी चीजें हुलिया बदल लेना है अपना और ये कह देना है कि हम ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तकाजे उसे पूरा करना है। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत के दावेदार हैं तो हमारा अखलाक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होना चाहिए। हमारा किरदार, हमारा रवैया, हमारा मामलात, हमारे अपने घर वालों के साथ हमारे मामलात कैसे होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसे मामलात होने चाहिए और इसी तरीके से गैरों के साथ हमारा मामलात कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों पर भी हमें अमल पैरा होना जरूरी है। अगर हम ये सारी चीजें अगर हम अपनी जिंदगियों में नाफिज नहीं करते हैं, मोहब्बत के ताल्लुक से आप कितनी भी महफिलें मुनाकिद कर दें, कितने भी मजलिस सजा ले, उस महीने का इंतजार करके जश्न मनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दावेदारी दुनिया में आप लोगों की नजर में कर सकते हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका कोई फायदा नहीं। अखलाक बहुत जरूरी चीज है और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तालीम दी और कहा भी कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और इसी तरीके से इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो हमें करना ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार तो करना ही है लेकिन हमेशा करना है, साल भर करना है, इसलिए कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा हमसे मोहब्बत करनी है तो वो तो करना ही है लेकिन उसके लिए खास दिन, खास महीना, खास मजलिस, खास औकात लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें हमेशा करना है और दोनों पहलू को सामने रख करके जो मैंने अभी बयान किया उस तरह से करना है, तब मोहब्बत का फायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत का मतलब, माना और उसका सही मफहूम समझने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अजल्ल व अतम्मु व अकबर।